ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج اس کا اس نوکری پر پہلا دن تھا اور پہلی ہی صبح قسمت نے اس کے ساتھ ایک عجیب سا کھیل کھیل دیا تھا۔ وہ ابھی دراب پاشا کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دراب پاشا کی ضعیف دادی کی کیئر ٹیکر بن کر آئی تھی۔ وہ ایک ایجنسی کے ذریعے بھیجی گئی تھی جنہوں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ ایک عمر رسیدہ بیمار خاتون کی ذمہ داری کرنی ہے۔ نئے ماحول میں کچھ گھبراہٹ، کچھ الجھن لیے وہ ملازمہ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی جو بس ہاتھوں کے اشارے سے راستہ دکھاتی آ رہی تھی۔ اوپر کی منزل پر پہنچ کر اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود پلٹ گئی۔ وہ بھی بغیر سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں سناٹا تھا، بیڈ پر کوئی نہیں تھا اور سجاوٹ کسی بزرگ خاتون کی نہیں بلکہ کسی مرد کی پسند کی لگ رہی تھی۔ کالی اور نیوی بلو رنگ کی شیٹس، ایک طرف کتابوں کی ریک، دوسرے کونے میں ڈمبلز اور ورزش کا سامان، ٹیبل پر گھڑی، چشمہ اور ایک فاؤنٹین پین۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ تو دادی کا کمرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ لمحے بھر کو چونک گئی۔ ایک لمحے میں اس کی حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ باہر آیا تھا، دراب پاشا، وہی جسے اس نے صرف ایجنسی کی فائل میں نام کی صورت دیکھا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، صرف ایک سفید تولیہ کمر کے گرد لپیٹے، گیلے بالوں سے پانی ٹپکتا ہوا، چھاتی پر سے پانی کی بوندیں پھسل کر ایبس کے درمیان گم ہو رہی تھی۔ گہری بوری آنکھوں میں ایک اجنبی سا غرور جھلک رہا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی، آنکھوں میں حیرت اور شرمندگی دونوں اتری، لیکن نگاہیں جیسے اس کی باڈی کی تراشوں میں اٹک گئی تھی۔ دراب پاشا نے ایک گہری سرد نظر اس پر ڈالی، جیسے اس کے لباس سے لے کر اس کی سانسوں تک سب کچھ لمحے میں تول لیا ہو، اور پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ کون ہو تم؟ وہ پیچھے ہٹتی گئی، گھبراہٹ سے آواز نہ نکلی، یہاں تک کہ اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ دراب پاشا نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر اس کے آس پاس رکھ دیے اور اسے اپنے بازوؤں کے درمیان قید کر لیا۔ اس طرح کسی کمارے لڑکے کو دیکھنے میں شرم نہیں آتی؟ وہ غلطی سے، مجھے لگا یہ چپ، غلطی کی ہے تو سزا بھی بھگتو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے قریب آیا، اس کی نظریں ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ وہ اپنی زبان سے اپنے لب تر کرتا اس کی اور قریب ہوا تو وہ گھبرا کر آنکھیں میچ گئی۔ وہ پل بھر کو رک گیا جیسے کوئی تصویر دیکھنے لگا ہو۔ دلکش ہو، اتنی سہمی ہوئی اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں اور کانپتی آواز میں بولی، آپ کا ٹاول۔ دراب نے چونک کر نیچے دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن اتنے میں وہ لڑکی موقع پا کر پھرتی سے نکلی اور دروازہ کھول کر دوپٹے کو سنبھالتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ دراب پاشا بس ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑا رہ گیا، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی، جیسے وہ سوچ رہا ہو دل اچھا بہلے گا۔ وہ خاموشی سے قدموں کی آہٹ دبائے دادی کے کمرے کے دروازے تک آیا ہی تھا کہ اندر سے ایک شوخ سی آواز سنائی دی، جس میں بے ساختہ مسکراہٹ اور اپنے پن کا عجیب امتزاج تھا۔ او ہو، آپ تو لگتا ہے چپکے چپکے کچھ نہ کچھ میٹھا کھاتی رہتی ہیں، تبھی شوگر کبھی قابو میں آتی نہیں۔ اب دیکھیے نا، اگر آپ میرے کہنے پر صرف 3 دن شکر سے پرہیز کر لیں تو میں قسم سے آپ کو چاکلیٹ لا کر دوں گی۔ اور ساتھ ہی ہلکی سی ہنسی گونجی۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ وہ آواز معصوم بھی تھی اور کسی بچے جیسی شوخ بھی۔ اندر سے دادی کی خفیف سی ڈانٹ سنائی دی، اے لڑکی، تو سمجھتی کیا ہے مجھے؟ میں بچی ہوں؟ جواب میں فوراً وہی خوش مزاج آواز ابھری، ارے نہیں، آپ تو بالکل ہیروئن لگتی ہیں، بس ذرا میٹھے پر کنٹرول کر لیں تو دوبارہ فلموں میں کام کر سکتی ہیں۔ دراب بے اختیار دروازے پر ٹھٹک گیا، جیسے کسی جادو نے اس کے قدم روک لیے ہوں۔ اس نے زندگی میں بہت سے لوگ دادی کے قریب آتے، رسمی لہجے میں بات کرتے یا ضرورت سے زیادہ نرمی دکھاتے دیکھے تھے، لیکن آج پہلی بار کسی اجنبی کو دادی سے اس قدر بے تکلفی سے بات کرتے سنا تھا کہ اس کے چہرے پر حقیقتاً حیرت کا عکس ابھرا۔ اندر سے پھر وہی آواز آئی، چلیں اب دوا کھا لیں، ورنہ میں قسم کھا کر کہہ رہی ہوں رات کا کھانا بند کرا دوں گی۔
दुराब को ऐसा महसूस हुआ है जैसे उस कमरे में सिर्फ एक लड़की नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी मौजूद है, जो लफ्जों से, अंदाज से, मुस्कुराहट से दादी के गिर्द एक रोशनी सी बुन रही है। उसका दिल बेख्तियार चाहा कि वो अंदर जाए, लेकिन वो वहीं दरवाजे पर टेक लगाकर खड़ा रहा, शायद इस खौफ से कि अगर वो अंदर गया तो ये शोक सा मंजर मुंतशिर ना हो जाए। वो अपने मखसूस संजीदा अंदाज में आहिस्ता कदम रखता सीधा अंदर आया। उसके वजूद की संगीनी जैसे फिजा में फैल गई हो, मगर वो जो अभी लम्हा भर पहले दादी अम्मा को चॉकलेट की शर्त पर हंसा रही थी, अचानक चौंक गई। उसकी नजरें बेख्तियार दुराब की तरफ उठी और जैसे वक्त रुक गया, दोनों की नजरें टकराईं। वो जो सुबह के वाक़ये के बाद शायद दोबारा देखने से बचना चाहती थी, यकदम साकित सी हो गई, जैसे अपने आप को इस गैर मतवक्को सूरत हाल के लिए तैयार ना कर पाई हो। दुराब की निगाह उसके चेहरे पर ठहर गई। दादी ने खुशी से आवाज़ दी, अरे दुराब बेटा, आ जा, मेरी नई केयर टेकर से मिल, बड़ी बातूनी है मगर दिल की साफ है। दुराब ने एक पल को नजरें हटाए बगैर बस इतना कहा, हम मिल चुके हैं। उसने फौरन निगाहें झुका ली जैसे कुछ छुपाना चाह रही हो, मगर रुखसारों पर फैलता हल्का सा रंग सब कुछ कह गया। दुराब की नजरें उस पर से दादी की तरफ पलटी और उसने पहली बार अपनी दादी के चेहरे पर वो खुशी देखी जो बरसों बाद किसी ने वापस लौटाई थी। वो एक मिडिल क्लास घराने की आम सी लड़की थी, जिसे जिंदगी ने ऐसी दास्तान का हिस्सा बना दिया था जहां पर हर मोड़ पर कुर्बानी, सब्र और खामोशी उसके हमसफर बने थे। उसका बाप एक जमाने में एक छोटे सरकारी दफ्तर में क्लर्क था, जो छोटे छोटे ख्वाब अपने बच्चों की आंखों में सजा कर जीता था, मगर जब फालिज ने उसका जिस्म मफलूज कर दिया तो सारे ख्वाब जैसे वक्त की गर्द में दफन हो गए। घर का वाहिद कमाने वाला पल भर में बिस्तर से जा लगा और फिर इस बोझ को उठाने के लिए सिर्फ एक ही कांधा बचा था, उसी का जो अभी अपनी किताबों में ख्वाब बुन रही थी। सफ़ेद कोट पहनने का अरमान आंखों में लिए अपने कॉलेज के आखिरी साल में थी, लेकिन हालात ने उसे रोक लिया और बगैर किसी शिकवे के, बिना कोई तासुर दिए, उसने वो ख्वाब अपनी दराज में बंद कर दिए और दादी अम्मा के केयर टेकर के तौर पर दुराब पाशा के महल नुमा घर में कदम रखा। उसे खुद पर फख्र था कि वो कमज़ोर नहीं थी, लेकिन हर रात जब वो चुपके से अपने बिस्तर पर बैठती, तब उसके दिल में अब भी कहीं एक अधूरा ख्वाब धड़कता था, डॉक्टर बनने का ख्वाब, जो शायद किसी और वक्त में, किसी और जिंदगी में पूरा होता। मगर फिलहाल उसके लिए सबसे बड़ा फर्ज बाप के साए को जिंदा रखना था और दो छोटे भाइयों को इस मुकाम तक पहुंचाना था जहां वो सर उठाकर जीना सीख सके। उसकी जिंदगी का हर दिन एक जिद्दोजहद थी, लेकिन वो उन लड़कियों में से थी जो हालात से टूटती नहीं, बल्कि हर बार थोड़ा और संवर जाती हैं। दादी अम्मा अपने मखसूस वक्त की नींद में थी, मगर उसके लिए दिन का काम खत्म नहीं हुआ था। वो सीधी किचन की तरफ बढ़ी। दादी की शाम की दवा, उनका हल्का सा सूप और दवा के साथ देने वाला जूस, ये सब उसके जहन में तरतीब से महफूज था। लेकिन जैसे ही उसने किचन के दरवाजे का हैंडल पकड़ा, पीछे से दुराब पाशा की गहरी आवाज़ सुनाई दी, दादी सो गई हैं? वो पलटी और नजरें नीचे करती जवाब दिया, जी, मैं उनके लिए सूप बनाने जा रही थी। दुराब चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे कुछ तोल रहा हो, फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। आज दादी बहुत खुश थी, कह रही थी कि बरसों बाद किसी ने दिल से उनके साथ वक्त गुजारा है। मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूं। वो दिल से बात करें, ये उनका बड़ापन है। दुराब पाशा ने पहली बार उसे इस तरह करीब से देखा था। फिजा में बारिश की बात की नमी थी और खामोशी हर कोने में बसी हुई महसूस हो रही थी, मगर सहन में जैसे एक इस्तराब की लहर दौड़ रही थी। जैसे ही वो गेट से अंदर दाखिल हुई, उसे सबसे पहले वही बुलंद कामत, संजीदा चेहरा नजर आया जो इस वक्त तेज तेज कदमों से सहन में चक्कर लगा रहा था। दुराब पाशा। उसकी पेशानी पर बल, आंखों में बेचैनी और हाथों में मुसलसल मुड़ता मोबाइल साफ बता रहा था कि वो बेकरार है। जैसे ही उसकी नज़र नताशा पर पड़ी, वो लपक कर उसकी तरफ आया और एक झटके से बरस पड़ा। कहाँ रह गई थी तुम? फोन क्यों बंद था? किसी को बताया तक नहीं? और दादी की तबीयत?
اس کے لہجے میں سختی بھی تھی اور چھپی ہوئی فکر بھی۔ وہ گھبرا گئی، دوپٹے سے اپنا بھیگا ہوا چہرہ صاف کرتے بمشکل بولی، رکشہ خراب ہو گیا تھا، میں پیدل ہی کچھ دور چلتی آئی، بارش کی وجہ سے نیٹ ورک بھی نہیں تھا۔ دوراب نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر حیرت سے اس کا جائزہ لیا۔ کیا تم رکشے سے آتی ہو روز؟ نتاشا نے سر جھکا لیا۔ ہاں، جسے کسی نے اپنی غربت کا اعتراف کر لیا ہو۔ میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں۔ دوراب کچھ لمحے خاموش رہا، اس کے چہرے پر پھیلی تکن، بارش سے بھیگا ہوا لباس، لرزتے ہوئے کندھے، سب اس کے دل کو جیسے چیرتے چلے گئے۔ چلو اندر آؤ۔ اس بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ نتاشا دھیرے دھیرے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ دوراب نے ایک نظر اس کے کپڑوں پر ڈالی جن سے پانی ٹپک رہا تھا، اور پھر فوراً قریب کھڑی ملازمہ کی طرف بڑھا۔ ریحانہ، اس کے لیے صاف کپڑے لے آؤ جو اس کے سائز کے قریب ہوں، اور جلدی دینا۔ ریحانہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے کی طرف چلی گئی، اور نتاشا نظریں جھکائے اندر داخل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب دادی کی طبیعت مزید بگڑنے لگی تو دوراب بے چینی سے اٹھا اور سیدھا نتاشا کو بلانے چلا آیا۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ آہستگی سے اندر آیا۔ نتاشا، دادی کی طبیعت، جملہ وہیں ادھورا رہ گیا۔ نتاشا کمرے کے درمیان کھڑی تھی۔ اس نے ابھی کپڑے بدلے تھے، سادہ سا سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، مگر دوپٹہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ گیلے بال کھلے ہوئے تھے، کمر سے نیچے تک بکھرے ہوئے، اور چہرے پر ہلکی ہلکی نمی چمک رہی تھی۔ وہ شاید آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی جب اچانک دوراب کی آواز پر مڑی۔ دوراب ساکت سا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی جاگ گئی جو کسی جذبے کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو نتاشا کے وجود پر جم گئی۔ گیلے بال، نم لب، سادہ لباس میں لپٹی وہ معصوم سی عورت جسے وہ چند دن پہلے تک صرف دادی کی نرس سمجھتا تھا، آج کچھ اور لگ رہی تھی، کسی نامکمل خواب جیسی، کسی انکہی خواہش جیسی۔ نتاشا نے فوراً اپنے بازو اپنے سینے پر لپیٹے اور نظریں جھکا لی۔ سوری، میں دوپٹہ۔ ابھی اس کی آواز لرز رہی تھی جیسے اسی لمحے اس کے اندر کوئی ہلچل پیدا کر دی ہو۔ دوراب نے پلکیں جھپکی جیسے خود کو کسی گہرے خیال سے جھنجھوڑ کر نکالا ہو، پھر نظریں پھیر کر آہستگی سے بولا، دادی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تمہیں بلا رہا تھا۔ اور وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا، مگر اس کے دل میں ایک خاموش دستک باقی رہ گئی تھی جس کا جواب شاید نتاشا کی نظریں بھی نہیں دے سکتی تھیں۔ دادی کی طبیعت واقعی بگڑ گئی تھی۔ دوراب اور نتاشا دونوں ایک ساتھ ان کے کمرے میں موجود تھے۔ دوراب کی آنکھوں میں پریشانی تھی اور نتاشا اپنی پوری توجہ دادی کے ماتھے پر رکھے گیلا کپڑا بدلنے میں لگا رہی تھی۔ تھوڑا پانی، دادی کی مدھم آواز نکلی تو دوراب فوراً آگے بڑھا، اور اس کے ساتھ ہی نتاشا بھی جگ اٹھانے لگی۔ دونوں کے ہاتھ ایک ساتھ جگ پر پہنچے، انگلیاں ٹکرائیں، ایک پل کو دونوں چونکے، نظریں ملی مگر پھر فوراً اپنی جگہ سنبھالی۔ میں دے دیتا ہوں، دوراب نے دھیرے سے کہا۔ نہیں، میں خود دے دیتی ہوں، نتاشا نے نرمی سے جواب دیا۔ کبھی دوراب کا ہاتھ نتاشا کے کندھے سے ہلکے سے ٹکراتا، کبھی نتاشا جھک کر دادی کے پاؤں سہلاتی تو اس کے بال دوراب کے قریب لہراتے۔ وہ بار بار کوشش کرتا کہ نظریں پھیر لے، مگر کچھ تھا جو پل پل اسے واپس اسی طرف کھینچ لاتا۔ نتاشا جلدی میں جھک کر نیچے گرے تکیے کو اٹھا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ آہستگی سے اس کے کندھوں سے سرک گیا۔ دوراب نے بے اختیار نظریں اٹھائی اور پھر بس وہیں رک گئی۔ سفید لباس، نرم چہرہ اور دوپٹے کے بغیر وہ معصوم سراپا جیسے کسی خواب کی تعبیر تھا۔ دوراب کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے پلکیں زور سے جھپکی جیسے خود کو واپس ہوش میں لانا چاہتا ہو، مگر کچھ لمحے وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ نتاشا نے جیسے ہی محسوس کیا گھبرا کر دوپٹہ اٹھایا اور جلدی سے اوڑھ لیا۔ اس کی نظریں جھک گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھ کپ کپانے۔ دوراب نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ دادی کو دوا دینی ہے، اس نے صرف اتنا کہا اور دوا کی شیشی کی طرف بڑھ گیا، مگر وہ لمحہ ان کے درمیان جیسے رک گیا تھا، نہ مکمل ہوا نہ ختم۔ دوپہر تک بارش زور و شور سے برس کر اب تھم چکی تھی، لیکن اس کا اثر ابھی بھی ہوا میں گھلا ہوا تھا۔
कमरे की खिड़कियों से हल्की हल्की नमी अंदर आ रही थी और दादी गहरी नींद की आगोश में थी। नताशा दादी के पांव की तरफ वाली कुर्सी पर बैठी खामोशी से उनके चेहरे को तक रही थी। उनकी सांसों की रवानी और होंठों पर सुकून की हल्की सी लकीर देखकर उसके दिल को भी कुछ देर को करार सा आ गया था। रेहाना आकर रुकी। मैडम, सर ने कहा है आप लंच कर लें, मैंने नीचे लगा दिया है। नताशा ने चौंक कर सर उठाया, जैसे ख्यालात की दुनिया से वापस आई हो। हाँ मैं आती हूँ, तुम जाओ। रेहाना चली गई और वो अभी कुर्सी से उठने ही वाली थी कि खिड़की के बाहर अचानक एक जोरदार बिजली चमकी। उसके साथ ही आसमान पर ऐसी कड़क सुनाई दी कि पूरा कमरा लरज उठा। नताशा के जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। वो बेख्तियार घबराकर कानों को हाथ लगाकर बैठ गई। बचपन से ही तेज आवाज़ों से उसे अजीब सा डर लगता था। इतने में दरवाजे पर दुराब नमूदार हुआ। वो अंदर आया और उसे इस हालत में देखकर चंद लम्हे उसे घूरने लगा। नताशा के चेहरे पर फैला खौफ, उसकी बंद पलकें और कांपते हाथ दुराब के दिल के किसी कोने को चुपके से छू गए। डर गई हो? उसने धीरे से कहा। नताशा ने पलकें उठाई और फिर फौरन अपनी नजरें झुका ली। उसकी आवाज़ में नरमी थी जो पहले कभी नहीं थी। बारिश और ये कड़क जरा ज्यादा थी बस। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। दुराब चंद कदम आगे बढ़ा, फिर खिड़की तक जाकर पर्दे खींच दिए। अब नहीं सुनाई देगी। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, मौसम के तेवर और ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। आसमान पर काले बादलों का कब्जा था और वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ तेज बारिश बरसने लगती। नेटवर्क सर्विस सुबह से ही बंद थी और नताशा को न सिर्फ घर इत्तला देना मुश्किल हो रहा था, बल्कि दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी सरायत कर गई थी। दादी की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उन्हें छोड़कर जा सकती। वो हर पल उनकी तबीयत का ख्याल रखे हुए थी। रात के किसी पहर जब बारिश थोड़ी थमी तो बाहर गेट पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद मुलाजमा आई। मैडम, कोई आपके लिए आया है, कहता है खाला ने भेजा है। नताशा तेजी से बाहर निकली तो पोर्च में खड़े अपने कज़न अली को देखकर चौंक गई, जो कार से टेक लगाकर खड़ा था, चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ में छतरी। क्या हाल है मिस नर्स? खाला बहुत परेशान थी, तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा था, बस उन्होंने कहा फ़ौरन ले आओ वरना वो खुद आ जाएंगी। नताशा बेख्तियार हंस दी। फ़ोन बंद नहीं, नेटवर्क की सर्विस डाउन है और वैसे भी दादी को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। अरे यार, खाला की फिक्र का क्या होगा? वो तो मुझे डांटेंगी कि तुम्हें लेकर क्यों नहीं आया। उसी लम्हे दुराब पाशा ऊपर से सीढ़ियां उतरता दिखाई दिया। उसकी नज़रें अली और नताशा के दरमियान होने वाली बेतकल्लुफ गुफ्तगू पर मरकूज थी। ये कौन है? दुराब का लहजा सपाट था। नताशा ने चौंक कर कहा, ये मेरे कज़न हैं अली, अम्मी ने भेजा है, बस खैरियत पूछने आ गए। अली ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। हेलो सर, मैं नताशा का खालाजाद हूँ। दुराब ने मुसाफा किए बगैर बस एक हल्की सी नज़र डाली और कहा, अभी इनकी यहाँ ज़रूरत है, दादी की तबीयत बहुत नाजुक है, इसे कहीं जाने की इजाज़त नहीं है। अली हल्का सा हंसा। अरे सर, खाला बहुत परेशान थी। दुराब ने हल्का सख्त लहजे में कहा, परेशानी बजा, लेकिन अगर इतनी फिक्र है तो कल सुबह ले जाएं, अभी नहीं। नताशा ने दुराब की नज़रों में अजीब सा तनाव महसूस किया और अली के चेहरे पर उलझन। अली ने कंधे उचकाकर कहा, ओके, तुम्हें बेहतर पता है नताशा, अपना ख्याल रखना, कल दोबारा आता हूँ। अली के जाते ही दुराब ने नताशा को आंखों ही आंखों में घूरा। ज्यादा फ्रैंक हो तुम अपने रिश्तेदारों के साथ। नताशा ने गहरा सांस लेते खुद को संभाला। वो मेरा कज़न है। दुराब एक पल को कुछ कहने को रुका, फिर बस इतना कहा, चलो दादी के पास, वो तुम्हें बार बार याद कर रही थी। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, मगर हवाओं में नमी और सख्त तासुर बाकी था, जो रात भर मौसम के साथ नताशा के वजूद में भी उतर चुका था। दादी की हालत अब बहुत बेहतर थी। वो मुस्कुराकर इसे देख रही थी और नताशा नीमवा आंखों से उनके चेहरे को यूं तक रही थी जिसे किसी ने बहुत मुश्किल से उसे जगा दिया हो। बेटा, पूरी रात मेरे पास बैठी रही हो, आंखें देखो तुम्हारी,
सुर्ख हो रही हैं। चाहो तो घर चली जाओ या ऊपर जाकर आराम कर लो। दिल मुतमईन है कि तुम हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। नताशा मुस्कुरा दी। नहीं दादी, अभी तो बस थोड़ा बैठती हूँ, फिर देखती हूँ। उसी वक्त दुराब दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। सफ़ेद कमीज के ऊपर हल्का नीला कार्डिगन, नजरें सीधा नताशा पर। तुम थकी हुई लग रही हो, चलो तुम्हें छोड़ आता हूँ। शाम तक वापस आ जाना, रात को शायद दादी को फिर तुम्हारी ज़रूरत हो। नताशा ने पल भर को दादी की तरफ देखा, जो इस वक्त मोहब्बत भरी नज़रों से उसे और दुराब दोनों को देख रही थी। इजाज़त मिली तो वो चुपचाप उठी, दुपट्टा संभाला और उसके पीछे चल दी। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठते खामोशी ने उन दोनों को एक बार फिर अपनी लपेट में ले लिया। सड़क पर धूप और बादलों की आंख मचोली जा रही थी और नताशा खिड़की से बाहर तेज चलती गलियों को देख रही थी, जिन पर रात की बारिश अब भी नमी की तय की सूरत बाकी थी। दुराब ने चुपचाप ड्राइविंग करते हुए एक नज़र नताशा पर डाली। उसके बिखरे बाल, हल्की सूजी हुई पलकें और खुश्क लब, कुछ था जो दुराब के दिल में एक अजीब सी जुबन पैदा कर रहा था। उसने आहिस्ता से एक बार और देखा और इस बार देर तक नजरें टिक गई। वो सादगी में भी कुछ ऐसा रखती थी जो नजर हटाए नहीं देता था। एक पल को उसे अपना आप बेकाबू सा महसूस हुआ, जैसे वो कुछ कहना चाहे और कह ना सके। नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी? दुराब ने अचानक पूछा और नताशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नहीं, दादी की तबीयत के साथ नींद का ख्याल ही नहीं रहा। दुराब की नजरें नताशा से हटी, मगर दिल अभी तक वहीं ठहरा। शाम के साए धीरे धीरे हवेली की दीवारों पर उतरने लगे थे। नताशा जब गेट से अंदर दाखिल हुई तो सामने से दुराब पाशा आता दिखाई दिया। स्याह शर्ट और खाकी पैंट में, हाथ में गाड़ी की चाबी घुमाते हुए वो कुछ सोचों में गुम सा था। नताशा ठुठक कर रुक गई, जैसे उसकी मौजूदगी ने दुराब की रवानी में एक लम्हे का वक्फा डाल दिया हो। दोनों की नजरें मिली थी, लेकिन इस बार वो निगाह नरम थी, जैसे दिन भर की थकन के बाद कोई मानूस चेहरा सामने आ जाए तो दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाए। दुराब ने कदम सुस्त करते हुए कहा, मुझे एक ज़रूरी काम के लिए जाना है। दादी को नींद से पहले दवा दे देना, मैं शायद देर से वापस आऊं। नताशा ने सर हिलाया। दुराब एक लम्हे को रुका, फिर नरमी से बोला, और हाँ, अगर बारिश फिर से शुरू हो जाए या कुछ हो तो मुझे फौरन मैसेज करना, मैं आ जाऊंगा। उसके लहजे में पहली बार एक ज़ाती सी फिक्र झलकी थी, जैसे नताशा अब सिर्फ दादी की केयर टेकर नहीं रही थी, जैसे वो अब हवेली के किसी कोने में अपना एक मुकाम बना चुकी थी। नताशा ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं दादी का ख्याल रखूंगी। दुराब ने एक नज़र और डाली, जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर बिना कुछ कहे तेजी से मुड़ गया और गेट की तरफ बढ़ गया। गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ और फिर वो हवेली के बड़े गेट से बाहर निकल गया। रात के 3 बज चुके थे। हवेली के आंगन पर सन्नाटा उतरा हुआ था। बस दूर से मेन गेट की चरचराहट और कदमों की चाप सुनाई दी। दुराब पाशा थकन ज़दा अंदर दाखिल हुआ, सीधा दादी के कमरे का रुख किया, जैसे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा हो कि सब खैरियत हो। दरवाज़ा हल्का सा धकेला तो कमरे में मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। एक कोने में नताशा कुर्सी पर बैठी दादी को देख रही थी, शायद किसी लम्हे उनकी करवट पर नज़र रखने के लिए। पूरी रात जागती रही थी। दुराब की नज़रें सीधी उस पर जा रुकी। वो चौंक गया। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, मगर पलकें भारी थी, चेहरे पर थकन और कुर्बानी की एक अजीब सी रोशनी, जैसे वो इस लम्हे दुनिया की सबसे बेलौस हस्ती हो। तुम सोई नहीं? दुराब ने दबे दबे लहजे में कहा। आवाज़ में हैरानी के साथ साथ एक नरमी थी जो खुद उसे भी नहीं लगी। नताशा ने आहिस्ता से पलटकर उसे देखा। नजरें चंद लम्हे उसके चेहरे पर टिक गईं, फिर धीरे से मुस्कुराई। दादी का बुखार कुछ देर पहले उतरा है, दवा के बाद नींद आ गई, मैं बस यूं ही बैठ गई। दुराब उसकी जानिब कुछ कदम और बढ़ाया। उसने दादी को एक नज़र देखा, फिर नताशा की तरफ पलटा जो अब खड़ी हो चुकी थी। उसका हल्का सा दुपट्टा कंधों से सिरक चुका था। वो फौरन उसे दुरुस्त करने लगी, लेकिन दुराब की नज़रें एक पल को वहीं रुक गईं
اس کے چہرے کی معصومیت، آنکھوں کی تھکن اور بے ساختہ جھجک، سب کچھ دل کے کسی کونے کو نرمی سے چھو گیا۔ تمہیں سونا چاہیے تھا، وہ دھیرے سے بولا، جیسے کوئی شکایت نہ ہو، بس ایک خیال ہو۔ نتاشا نے سر جھکا لیا۔ سو جاتی، پر دادی کے ساتھ دل لگا رہتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں ان کی فکر میں نیند ہی نہیں آئی۔ دراب نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ باہر نکلا تو دل میں کچھ عجیب ہلچل مچ رہی تھی، جیسے ایک اجنبی خاموش سی لڑکی اس کی زندگی کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی ہو، اور وہ بغیر اجازت کے بھی اس کی موجودگی کو قبول کر چکا ہو۔ کمرے کی کھڑکی سے شام کی روشنی دھیرے دھیرے ماند پڑ رہی تھی۔ سورج آسمان کے کنارے پر جھکنے کو تھا جب دراب پاشا تھکا ہارا دفتر سے لوٹا۔ ہمیشہ کی طرح سیدھا دادی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آج دل میں ایک انجانی سی خوشی تھی، شاید نتاشا کی موجودگی کا خیال، شاید اس کی خاموش پرسکون خدمت کے لمحات، وہ وقت جو بغیر بولے دل کو چھو جاتا تھا۔ دروازہ کھولا تو دادی نیم دراز حالت میں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، چہرے پر اطمینان تھا۔ دراب نے ان کی خیریت پوچھی۔ دوا وقت پر دی یا نہیں؟ کھانا کھایا یا نہیں؟ ہر سوال کے دوران نظریں ایک بار بھی کمرے کے کونے سے نہ ہٹی جہاں اکثر نتاشا کی کرسی ہوتی تھی۔ نتاشا کہاں ہے؟ دراب نے آخرکار پوچھ ہی لیا، جیسے اب صبر ختم ہونے کو ہو۔ اس سے پہلے کہ دادی کچھ کہتی، ریحانہ نے اندر آ کر دھیرے سے کہا، سر، دن میں کوئی لڑکا آیا تھا، کافی دیر وہ اور نتاشا باہر بات کرتے رہے، پھر میڈم دادی جان سے اجازت لے کر ان کے ساتھ چلی گئی۔ دراب کا چہرہ لمحے بھر کو ساکت ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے سینے میں ہلکی سی چبھن رکھ دی ہو۔ کون لڑکا؟ آواز معمول سے تھوڑی سخت ہو گئی تھی۔ ریحانہ نے جلدی سے کہا، شاید ان کا کوئی عزیز تھا۔ نتاشا نے خود بتایا کہ وہ انہیں لینے آیا ہے اور وہ کل واپس آ جائیں گی۔ دراب خاموش ہو گیا، نظر دادی پر ڈالی جو اب بھی کچھ نہیں کہہ رہی تھی، پھر چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ دراب جیسے ساکت ہو گیا تھا ریحانہ کی آواز پر، وہ اپنے خیالوں سے باہر آیا جسے کوئی اچانک نیند سے جگا دے۔ سر، دادی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ کچھ کہے بغیر سر ہلاتے اٹھا اور لمبے ڈھک بھرتا دادی کے کمرے میں داخل ہوا۔ آ جاؤ بیٹا، بیٹھو یہاں میرے پاس۔ دادی نے اپنے قریب اشارہ کیا جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کی منتظر ہوں۔ دراب خاموشی سے جا بیٹھا اور دادی نے آہستگی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے جھریوں بھرے ہاتھوں میں لے لیے۔ بیٹا، رشتہ مانگ لو اس کا، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ دراب کے چہرے پر حیرانی کی ایک لہر دوڑ گئی، جیسے کسی نے اس کے دل کی چھپی بات کو زبان دے دی ہو۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ دادی نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا ہے، جو تم زبان پر نہیں لائے وہ تمہاری آنکھیں کہہ گئیں دراب۔ وہ لڑکی تمہارے دل میں اتر چکی ہے۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہوا، نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو گئی ہو۔ دادی کے الفاظ اس کے اندر کہیں گونجنے لگے تھے، جنہیں وہ خود بھی تسلیم نہ کر پایا تھا۔ ابھی تک کمرے کی خاموشی میں صرف ایک ہی آواز تھی، دل کی دھڑکن کی، اور وہ سچ جو کہنے سے پہلے آنکھیں بول گئی تھیں۔ دراب کے چہرے پر جیسے ساری دنیا کی روشنی بجھ گئی ہو۔ کھڑکی کے اس پار سے علی کی موٹر سائیکل پر نتاشا کو اترتے دیکھا تو اس کی مٹھیاں خود بخود بھینچ گئیں، جیسے ضبط کی آخری حدوں پر کھڑا ہو۔ دل میں ایک انجانی ٹھنڈک سی اتری، یا شاید جلن کا وہ لاوا تھا جو اندر ہی اندر سب کچھ بھسم کر رہا تھا۔ نتاشا ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے سیدھی دادی کے کمرے میں گئی۔ وہی انداز، وہی چلبلی مسکراہٹ، جیسے کچھ بدلا ہی نہ ہو۔ دراب بے ساختہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ پہلے ہی دادی کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ یہ آپ کے لیے ہے، اسپیشل شوگر فری مٹھائی۔ میں نے تو بہت منع کیا تھا، لیکن علی نے زبردستی بھیجی ہے۔ ہماری منگنی طے ہو گئی ہے نا، اس لیے۔ دراب کی سماعت پر جیسے بم پھٹا ہو۔ منگنی؟ علی کے ساتھ؟ اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ نتاشا نے اسی بے فکری سے مٹھائی کا ڈبہ اب دراب کے سامنے کیا۔ آپ بھی لیں۔
वो कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे जबान गंग हो गई हो। आंखें उसके चेहरे पर जम गई, लेकिन अब वो अजनबी लगने लगी थी। दादी ने खामोशी से सर झुका लिया। उनकी आंखों में एक उदासी सी तैर गई जो उन्होंने छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर नताशा ने महसूस कर ली थी। कमरे में कुछ देर एक बोझल खामोशी छाई रही। दुराब जैसे अंदर तक टूट चुका था। वो एक लफ्ज़ कहे बगैर जल्दी से उठा, जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और लंबे डग भरते हवेली से बाहर निकल गया। उसका चेहरा सपाट था, मगर आंखों में एक तूफान लरज रहा था। नताशा उसके पीछे लपकी। दुराब सुने, मुझे आपसे बात करनी है, वो छुट्टी चाहिए थी। वो दरवाजे तक पहुंची, मगर वो जा चुका था। सिर्फ गेट के बंद होने की आवाज़ बाकी रह गई। वो वहीं दरवाजे पर ठहर गई, हाथ फिजा में मुअल्लिक रह गया, जैसे कोई अधूरा सवाल, कोई रोकने की आखिरी कोशिश। शाम के साए गहरे होने लगे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। हवेली में खामोशी थी। दादी ने नमाज पढ़कर तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई थी। नताशा बार बार गेट की तरफ देख रही थी। दिल अजीब बेचैनी से धड़क रहा था। फिर फोन की घंटी बजी। रेहाना भाग कर आई, चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। कांपती हुई आवाज़ में बोली, बीबी जी, सर दुराब, उनका एक्सीडेंट हो गया है। नताशा की सांस जैसे रुक गई, कदमों के नीचे ज़मीन खिसक गई। क्या? कहाँ? कैसे? वो शहर जा रहे थे। सामने से आने वाले ट्रक ने टक्कर मार दी। बहुत बुरा एक्सीडेंट था, अभी अस्पताल ले जाया गया है। नताशा का दिल हलक में आ गया। वो फौरन दादी की तरफ लपकी। दादी के हाथ से तस्बीह गिर चुकी थी, आंखों में नमी तैर गई थी। अल्लाह खैर करे बेटा, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। दुराब की हालत बज़ाहिर संभल गई थी, मगर अंदर से वो जैसे बिखरता जा रहा था। जख्म तो भर रहे थे, मगर बुखार कभी कभार यूं आता जैसे अंदर ही अंदर कोई जंग चल रही हो। दादी दिन में कुछ देर को सोती थी, मगर नताशा तकरीबन हर लम्हा दुराब के साथ रहती। वो खुद से भी ज़्यादा उसकी दवा, उसकी नींद, उसके आराम का ख्याल रखती। रात को जब बुखार में दुराब की आंख खुलती तो वो उसे नीम अंधेरे में उसके पास बैठा पाता, एक हाथ से ठंडे पानी की पट्टियां करते हुए और दूसरे हाथ में कोई दुआ, कोई अस्कार, जैसे लफ्ज़ों से भी उसे शफा देना चाहती हो। कई बार वो नींद में कुछ बड़बड़ाता और वो झुककर उसकी आवाज़ सुनती, उसका माथा छूती। उसे अब अंदाज़ा होने लगा था कि वो सिर्फ दादी का ख्याल रखने नहीं आई, वो इसके दिल की दुनिया का वो खला पुर कर रही थी जिसके वजूद से वो खुद भी शायद लाइल्म था। एक रात बुखार ने फिर शिद्दत पकड़ी। नताशा ने फौरन दवा दी और उसके सर पर पानी की पट्टियां रखना शुरू की। दुराब ने आंखें खोली, धुंधलाई निगाहों से उसे देखा और आहिस्तगी से कहा, तुम यहाँ हो? मैं यही हूँ, आराम करें। वो धीरे से बोली, मुझे कभी किसी की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई जितनी तुम्हारी होने लगी है। नताशा का हाथ लम्हा भर को थम गया, लेकिन फिर जैसे कुछ सुने बगैर वो पट्टी दोबारा ठीक करने लगी। नताशा, मैं जानता हूँ शायद ये वक्त नहीं, ना मौका, लेकिन जो तुम मेरे लिए कर रही हो उसमें सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, कुछ और भी है, और मैं उसे रोज़ महसूस कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी मगर लहजा सच्चा। नताशा का दिल बेकाबू हुआ। उसकी पलकें लर्जी, लेकिन वो कुछ ना बोली। दुराब ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो, सिर्फ दादी के लिए नहीं, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ दुराब की सांसें और नताशा के धड़कते दिल की आवाज़ बाकी थी। अगले रोज़ नताशा फ़ोन पर बात कर रही थी जब दुराब कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गया। उसके चेहरे पर बेचैनी और गुस्से की आमेजिश साफ देखी जा सकती थी। तुम जानती हो ना, मंगनी की तारीख करीब है और तुम पिछले एक हफ्ते से घर कदम नहीं रख रही। आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से साफ सुनाई दे रही थी। नताशा ने नरम लहजे में कहा, आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं मंगनी वाले दिन ज़रूर पहुंच जाऊंगी। कैसी दुल्हन हो तुम, पागल लड़की। अम्मी, कुछ फ़राइज़ निभाने बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके अगले जुमले से पहले ही दुराब ने तेज़ी से कदम बढ़ाकर उसके हाथ से फ़ोन ले लिया
एक निगाह नताशा पर डाली, फोन बंद किया और बेड पर पटक दिया। नताशा चौंक गई, कुछ बोलने लगी, मगर उससे पहले ही दुराब ने उसका हाथ थामकर उसे मजबूती से कमरे की तरफ ले जाना शुरू किया। कमरे के अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और नताशा को बेड पर धकेल दिया। वो हल्की सी चीख के साथ गिर तो गई, मगर आंखों में हैरत और दिल में एक अनजानी हलचल लिए उसे देखती रही। दुराब की आवाज़ में अब वो जब टूट चुका था जो उसने इतने दिनों से कायम रखा था। जानती हो ना, मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। क्यों इतनी बेनियाजी दिखाती हो? क्यों हर बार मेरे जज्बों को नज़रअंदाज कर देती हो? नताशा खामोश हो गई। उसकी पलकें झुकी हुई थी, दिल की धड़कन जैसे दीवारों से टकरा रही थी। दुराब उसके सामने झुका, उसकी थोड़ी आहिस्तगी से उठाई ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। क्या तुम्हें नजर नहीं आता तुम्हारे बगैर मैं आधा सा रह जाता हूं? नताशा की आंखों में नमी तैरने लगी, होंठ कांपे मगर आवाज ना निकली। दुराब ने नरमी से उसके बाल पीछे किए और कुछ पलों के लिए सिर्फ खामोशी बोलती रही। नताशा ने झटके से उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। दुराब छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? कल मेरी मंगनी है। उसकी आवाज थरथरा गई थी, मगर दुराब ने उसे बाजू से थामे रखा। एक कदम और करीब हुआ, इतना करीब कि उसकी सांस की हिद्दत नताशा के रुखसारों से टकराने लगी। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे लहजे में लर्जिश है, तुम्हारी आंखों में वो सच है जो तुम जबान से छुपाना चाहती हो। सच बताओ, क्या मुझसे मोहब्बत नहीं करती? नताशा ने नजरें चुरा ली, मगर दुराब ने आहिस्तगी से उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। बताओ नताशा, क्या इन लम्हों में जब मैं बिस्तर पर नींद बेहोश पड़ा होता था तुम्हारे हाथ मेरे माथे पर साया नहीं बनते थे? क्या उन रातों में जब दादी सो चुकी होती थी तुम चुपके से मुझे देखने नहीं आती थी? नताशा की पलकें भीगने लगी। वो कुछ बोलने को हुई, मगर अल्फाज उसके लबों पर मुंजमद हो गए। दुराब ने उसके चेहरे के करीब झुककर उसके कान के करीब धीरे से कहा, तुम्हारे लफ्ज़ में वो सुकून है जो मैं बरसों से खो बैठा हूं। तुम्हारी खामोशी में वो मोहब्बत छुपी है जिसे शायद तुम खुद भी तस्लीम करने से डरती हो। वो उसकी गर्दन के करीब एक लम्हे को ठहर गया, जैसे उसकी मौजूदगी से अपनी अधूरी सांसों को पूरा कर रहा हो। नताशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हाथों से दुराब को पीछे धकेलना चाहा, मगर दुराब ने उसकी उंगलियां थाम ली और नरमी से उन पर लब रख दिए। तुम भाग सकती हो, झूठ बोल सकती हो, मगर इन हाथों की लर्जिश और इन आंखों की नमी मेरे सच को झुठला नहीं सकती। नताशा बिलक बिलक कर रोने लगी तो दुराब के दिल की दीवारें लरस गईं। वो जो अभी पल भर पहले शिद्दत से अपने जज्बे का इजहार कर रहा था, अब उसकी आंखों में आंसू देखकर बेबस हो गया। उसने आहिस्ता से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। नताशा प्लीज, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, तुम रो मत। वो खुद भी लरस गया। आहिस्ता से झुककर उसकी आंखों से बहते आंसू अपने लबों से चुनने लगा, जैसे हर आंसू के साथ वो उसके दिल की उदासी भी पीना चाहता हो। नताशा ने कोई मज़ाहमत ना की। उसकी पलकें भीग चुकी थीं, सांसें उलझने लगी थीं। शायद वो भी अब थक चुकी थी लड़ते लड़ते और छुपाते छुपाते। शायद वो भी अब इस लम्स को, इस गुर्बत को तस्लीम करना चाहती थी। दुराब ने नरमी से उसकी बंद आंखों पर अपने लब रखे, एक खामोश यकीन के साथ। नताशा जैसे बिखर कर उसकी बाहों में आ गई। कोई हिचकिचाहट ना रही, कोई पर्दा ना रहा, सिर्फ एक खामोश तस्लीम। दुराब ने उसके चेहरे को अपने करीब किया और धीरे से अपने लब उसके लबों पर रख दिए, जैसे बरसों का सच एक लम्हे में मोहर बंद कर गया हो। दुराब के लब नताशा के लबों पर ठहरे तो वक्त जैसे थम गया। बाहर की दुनिया कहीं खो गई, सिर्फ दिलों की धड़कन बाकी थी और सांसों की मध्यम लय। नताशा के जिस्म में एक नरम सी कपकपी दौड़ गई, मगर वो खुद को उस गुर्बत से अलग ना कर सकी। उसके अंदर एक अजीब सी कशिश पैदा हो चुकी थी जो हर लम्हा दुराब के वजूद के गिर्द लपेटती जा रही थी। दुराब ने उसकी कमर के गिर्द बाजू बांध लिए, उसे अपने और करीब किया, इतना करीब कि नताशा को उसके दिल की धड़कन अपने वजूद में सुनाई देने लगी। उसने नताशा की गर्दन की नरम लकीर पर लब रखे, एक सांस भरी, फिर आहिस्ता से उसकी गर्दन पर बोसा दिया। नताशा की पलकें झुक गईं, जैसे वो लम्हा उसे मुकम्मल तौर पर जेर कर गया हो।
दुराब ने उसके कान की लौ को नरमी से छुआ और सरगोशी की। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये लम्हा, ये रात और तुम्हारी हर सांस। नताशा ने अपने हाथ उसके सीने पर रख दिए, जैसे चाहती हो कि उसके दिल की धड़कन सुन सके, जो सिर्फ उसी के लिए बेकाबू हो रही थी। दुराब ने उसकी थोड़ी थामी और चेहरा ऊपर किया, उसकी आंखों में देखा। अगर मैं आज तुम्हें रोक लूं तो क्या तुम कल जा पाओगी? नताशा आहिस्ता से नफी में सर हिलाने लगी। उसकी आंखों में वही इकरार छुपा था जो ज़बान अभी तक अदा ना कर सकी थी। दुराब ने उसके रुखसार पर लब रखे, फिर आहिस्तगी से अपनी उंगलियों से उसके कंधों से दुपट्टा सरका दिया। वो कपकपाई मगर रोका नहीं। दुराब ने उसके गालों पर बोसा देते अपनी उंगलियां उसके बालों में फेरना शुरू की। नताशा की सांसें तेज हो रही थी। उसके लब अब मुकम्मल तौर पर दुराब के लबों का जवाब दे रहे थे। वो लम्हा, वो लम्स, वो महक, सब एक नई दुनिया की दहलीज पर थे, जहाँ सिर्फ इश्क था, जहाँ सिर्फ वो दोनों थे और जहाँ किसी और वादे, किसी और रिश्ते की गुंजाइश नहीं थी। दुराब ने उसके हाथों की गिरफ्त और मजबूत कर दी, जैसे वो उस पल को, उस लम्स को हमेशा के लिए महफूज करना चाहता हो। उसकी आंखों में वो बेबसी तैरने लगी जो सिर्फ वही जान सकता था, जो सच्चे दिल से मोहब्बत करता हो। उसने नताशा के चेहरे को देखा जो आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर उन आंसुओं के पीछे एक फैसला छुपा था। दुराब ने आहिस्तगी से कहा, मोहब्बत में कभी किसी एहसान की गुंजाइश नहीं होती नताशा। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो बाकी सब बहाने हैं। नताशा की पलकें लर्जी, उसने नजरें चुराई। ये बहाने नहीं हैं दुराब, ये कर्ज हैं जो हम कभी चुका नहीं सकते। मैं कैसे अपनी माँ की आंखों में आंसू ला सकती हूँ? खाला ने बाबा को अस्पताल पहुँचाया, उनके बिल दिए, मेरे भाइयों की फीस दी, हमें सहारा दिया जब हम बेसहारा थे। और अब जब वो मेरे लिए अली को लेकर आई हैं तो मैं इनकार कर दूं? क्या ये खुद गर्जी नहीं होगी? दुराब ने उसकी बात को, हर लफ्ज़ को दिल पर महसूस किया। तो मोहब्बत क्या होती है? अगर वो सिर्फ कुर्बानी के लिए है तो फिर तुम भी कुर्बानी दो ना, अपनी खुशी की, अपनी जिंदगी की। लेकिन मत कहना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, क्योंकि जिसे किसी दूसरे के हक में छोड़ दिया जाए वो मोहब्बत नहीं होती, वो कमज़ोरी होती है जो तुम दिखा रही हो। नताशा का दिल फटने को था। उसने अपनी नज़रें दुराब की आंखों में गाड़ दी। मैं कमज़ोर हूँ दुराब, क्योंकि मेरी माँ, मेरा माजी, मेरे वो दिन जब हम दर से लौटाए गए थे, ये सब मेरे साथ हैं और शायद मैं उस सब से आगे नहीं बढ़ सकती। दुराब ने अपनी आंखें मूंद ली जैसे कुछ तोड़ कर गया हो, फिर आहिस्तगी से उसका हाथ छोड़ दिया। ठीक है जाओ, लेकिन एक वादा दो, कभी किसी लम्हे तुम्हें मेरी याद आए या दिल तड़पे तो ये मत कहना कि मैंने तुम्हें रोका नहीं था। नताशा फूट फूट कर रो दी, मगर अब लफ्ज़ों का कोई फ़ायदा नहीं था। खामोशी के दरमियान फैसला हो चुका था। दादी छड़ी के सहारे खुद चलकर दुराब के कमरे में आ गई। बेटा, नताशा दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे बिना बताए चली गई? दुराब उठकर उनके पास आया। हाँ दादी, वो चली गई और शायद अब कभी नहीं आएगी। ये कहकर वो दादी से लिपट गया। आज उसकी मंगनी है। वो फूट फूट कर रोने लगा। दादी की आंखों में बरसों का तजर्बा, बेपनाह शफकत और इस वक्त एक नाकाबिले इनकार सच्चाई छुपी हुई थी। वो खामोश था जैसे किसी ने दिल के जख्म को एक बार फिर नंगा कर दिया हो। दादी ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। मोहब्बत में एक बार हार मानने वाला उम्र भर पछताता है बेटा। वो गई है, लेकिन अगर तुमने उसे रोकने की आखिरी कोशिश ना की तो वो चली जाएगी हमेशा के लिए, और तुम सिर्फ उस दिन को याद करते रहोगे जब तुमने कुछ ना कहा था। दुराब ने पलकें बंद की जैसे दिल की धड़कनें सुन रहा हो, फिर आहिस्ता से उठा। आंखों में एक नई रोशनी, नया हौसला भर गया था। दादी के लबों पर पहली बार मुस्कुराहट आई। जहां दिल हारे हैं वहीं जंग जीतनी भी होती है। जाओ और उसे रोक लो, वो तुम्हारी है, इससे पहले कि कोई और उसे हमेशा के लिए ले जाए। दुराब ने तेजी से अपनी चाबी उठाई। वो जानता था यह आखिरी मौका है, और मोहब्बत जब आखिरी सांस पर आ जाए तो हार मानने वाले कमजोर होते हैं, आशिक नहीं। लाइट्स की चमक, फूलों की खुशबू, मेहमानों की हंसी और बैंड की मध्यम धुनें,
सब कुछ एक मुकम्मल तकरीब का मंजर पेश कर रहा था। सजे सवरे माहौल में नताशा सबकी नजरें अपने हुस्न, सादगी और खाली आंखों से चुरा रही थी। आज उसकी मंगनी थी। अली खुश था, खाला मुतमईन और मेहमान दाद दे रहे थे, मगर वो खुद जैसे दिल कहीं पीछे हवेली के किसी कमरे में रह गया हो। उसने कई बार मोबाइल की स्क्रीन को यूं देखा जैसे किसी अनदेखे पैगाम की मुंतजिर हो, मगर खामोशी ने उसकी धड़कनों में शोर मचा रखा था। खाला ने हाथ थामकर उससे स्टेज की तरफ बढ़ाया, अली के साथ फोटो लेने के लिए। ऐन उसी वक्त हॉल का दरवाज़ा खुला और दुराब पाशा अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें सिर्फ नताशा को ढूंढ रही थी, और जब नज़र उस पर ठहरी तो अली के माथे पर बल पड़ गए। दुराब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता स्टेज के करीब आया। अली एक कदम आगे आया। ये कोई मुनासिब वक्त नहीं, मगर दुराब ने नज़रें हटाए बगैर कहा, यही तो वक्त है अली जब गलती रोकी जा सकती है। मैं नताशा से कुछ कहना चाहता हूँ। नताशा की सांसें बेतरतीब थीं। वो एक पल के लिए पीछे हटी, फिर दुराब ने सबके सामने हाथ बढ़ाया। नताशा, क्या वाकई तुम इस मंगनी से खुश हो? क्या वाकई दिल से अली को कबूल किया है? अगर नहीं तो बस एक बार मेरे साथ चलने की हामी भर लो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हॉल में जैसे वक्त थम गया था। हर नज़र उस मंजर पर जमी थी जहां जज्बात का एक तूफान उमड़ रहा था। नताशा की माँ दुराब के सामने खड़ी हो गई। कौन है आप और क्यों हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुले हैं? उनकी आवाज़ में लर्जिश थी। दुराब ने एक गहरी सांस ली। उसकी नज़रें सीधा नताशा पर थीं। मैं नताशा से मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। एक लम्हे को जैसे सब रुक गया। नताशा की माँ की नज़रें फौरन बेटी की तरफ उठी और सबके सामने नताशा ने हल्के से असबात में सर हिला दिया। आंखों से बहते आंसू खामोश एतराफ़ थे। माँ का दिल टूटा। वो दुराब के सामने हाथ जोड़ गई। बेटा प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जो कुछ मेरे पास है वो मेरी बहन की बदौलत है। अगर आज मेरे शौहर का साया और मेरे बच्चों का सुख सलामत है तो वो उसी के एहसान की देन है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती। एक नताशा तो क्या, अगर मेरी 10 बेटियां होती तो मैं उनकी खुशियां उनके एहसान के नीचे रख देती। अली आगे बढ़ा। उसकी आंखों में कर्ब और अजमत दोनों थे। खाला ऐसा मत करें। अगर नताशा को इनसे मोहब्बत है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं। सब हैरान थे, मगर सबसे ज्यादा खुद नताशा। तभी अली की मां ने आगे बढ़कर नताशा की मां के हाथ थाम लिए। पागल, तुम क्या समझती हो मैंने तुम पर कोई एहसान किया था? नहीं, मैंने अपना फर्ज निभाया था और उसके बदले तुम्हें अपनी बेटी की खुशी कुर्बान करने की कोई जरूरत नहीं। नताशा की आंखें भर आईं। अली ने जेब से वो मंगनी की अंगूठी निकाली, आहिस्ता से दुराब के हाथ पर रखी। ये अब तुम्हारा हक है। दुराब ने नताशा की उंगली में अंगूठी पहनाई। मेहमानों के दरमियान एक सन्नाटा छा गया और फिर चंद लम्हों बाद धीरे धीरे तालियां, मुबारकबादों का शोर उठने लगा। नताशा धीरे से दुराब के करीब हुई, उसके सीने से लग गई, जैसे बरसों की थकन, बेयकीनी और खौफ अब खत्म हुआ हो। दुराब ने अपनी बाहों का हिसार उसके गिर्द सख्त किया और पहली बार उसे लगा उसने सब कुछ पा लिया है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।